Hello viewers, welcome back to Design Consulting Services. Today I want to show what epoxy flooring. So first step we have to check this surface level, okay, by the help of spirit level and auto level instrument. So we have make proper surface preparation. After that we are checking now, and we almost found the level, okay, and wherever we have some undulations, level in difference, we are removing that extra thickness, okay, by this equipment. So surveyor has to mark. First step, the surveyor has to mark like these nails, okay, the difference. So according to that level we have to make our surface preparation. So with this area we no need slope, it should be 0 0. So now after finishing the surface preparation we have to go for this patch work, okay, Nito Floor TF 10,000. This is 3 component. Now we are adding sand. After that we are adding this base, sand and base, okay, TF 10,000, Nito Floor TF 10,000 base, and there is a hardener also. Total 3 component we have, okay. So wherever you have voids, so in this voids we have to fill this. This is Nito Floor TF 10,000 hardener, okay. These 3 component. First one is sand, second is base, and third is hardener. So as how much you need quantity, mix it partial, okay. Don't try to mix one time all the quantity. Mix it as per the required filling, okay. So now after proper mix, make sure these 3 components should become one color, okay, homogeneous color. So like this we have to mix properly. After mixing we have to place this in the joints or voids, small voids. You can see here small gaps we are filling now like this. So yeah, after removing completely this whites, we have to fill this sand, okay. So now we are using for this epoxy coating we are using Nito Floor FC 150. So this is the process, okay. After preparation, this level check, after wherever the voids we have to fill this Nito Floor TF 10,000, okay. So our goal, the objective is to provide protection to the floor. This is electrical substation building, okay. We have switchgear, GIS and control room. If our scope is mentioned self-leveling, we have to use self-leveling. If it is mentioned epoxy, we have to use epoxy. So this project epoxy is recommended, so we are using epoxy, okay. So after finishing this 3 component filling, then we have to go for this Nito Motor TC 2000. So this is 2 component, hardener and base. Now we are mixing this before application. So we have to mix properly, it's become one color, homogeneous. And always I recommend to follow recommendation, the material whatever you use, okay. So now we have put some here Nito Motor TC 2000. So if you see on your left and right, we already applied the Nito Floor to TC 2000, and now this is the remaining area. We have to put some small quantity like this and apply completely.
So this, what will happen, this will cover all hairline cracks, whatever small pin pockets, it fill everything. Okay, so when you going to apply the top coat, that time no air voids and air bubbles will form. So like this we have to make application. Okay, so complete all the area we have to apply this Nito Mortar TC2000. This is our second steps. Okay, the first step is surface preparation. First step is survey level check. After that, removing all the dead mortar and prepare the level. And after finishing leveling, we have to fill this cracks and voids using Nitofloor TF 10000. Okay, that is number one. And number two, we have to now you can see this application. This is Nito Mortar TC2000. This is for hairline cracks and small patchwork. Okay, this is epoxy resin, hardener and base, 2 component. So this is advisable, it will give solid substrate. Okay, so make sure before this application no dust should be present on the floor. So like this we have to completely apply and leave it for 12 hours for dry. Okay, before application of Nito Prime 31 we have to leave it for dry. So after finishing the Nitofloor 2000, then we have to go for Nito Prime 31. Okay, this is our Nito Prime 31 hardener and base. So the big one is the base and the added one is the hardener. So we have to add these two and mix properly. Once this mixed, we have to immediately start application. Otherwise it will become hard and tight. So and it is difficult to apply. So this is the why we use to provide protection to the floor, and it will have to provide a dust-free work environment, and the rooms looks nice, clean rooms and easy to maintain. So for that reason we are using this is for protection, to provide a static protection, storage, electronic manufacturing and aesthetic purpose for beautifulness. Okay, now we are to apply this Nito Prime 31 over the Nito Mortar TC2000. Okay, so like this we have to apply completely by using the roller brush. So here we have 4 steps. Okay, application steps. The first one is surface preparation, second one is this Nitofloor TF 10000, and the third one application of Nito Mortar TC2000, and third one is Nito Prime 31. Okay, after that we have to go for the top. So now the here Nito Prime application is finished, and after dry we are again using this air blower to remove the dust. So we have to clean again before application of top coat. Okay, and what is our top coat? Nitofloor FC 150, that is our top. So this is the dust we have to remove, and then start the application of Nitofloor FC 150. So now we have applied here FC 150. So thickness and all maintain. Okay, thank you for watching. ऑन हो गया। हेलो व्यूअर्स, मैं ये कंट्रोल रूम एरिया है हमारा। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं Nitofloor FC 150 इपॉक्सी रेजिन, ये मटेरियल होता है। ठीक है,
ये जो है ना अपने फ्लोर एरिया में भी वॉल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये इसको फ्लोर एरिया में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी मदर कंक्रीट है, आप जैसा कि देख रहे हैं। पूरा इसको सरफेस प्रिपरेशन कर दिया हम लोग, ठीक है। क्लीन करके डस्ट पूरा देखें, डस्ट पूरा निकाल दिए, पूरा डस्ट निकाल दिए ऊपर से क्लीन करके। अब इसके बाद में हमको इस तरह से लेवल चेक करना है, ठीक है। लेवल चेक करेंगे, रेवल पट्टी लगा कहाँ पर एंगुलेशन है क्या है, वो लेवल चेक करेंगे। पूरा स्पीड लेवल है, स्पीड लेवल है। ये जो बबूल है वो सेंटर में होना, बबूल हमेशा सेंटर में आना चाहिए। अगर इधर उधर है तो फिर इसका मतलब आपका लेवल सही नहीं है। तो हम ये स्पीड लेवल लगा के हर जगह जगह पर चेक करेंगे, ठीक है। चेक करके हम उसको फिल करेंगे। और इस तरह के जो क्रैक्स है बारीक बारीक, इसके अंदर हम नीटो मोटर TC2000 डालेंगे बाद में, ठीक है। ये हमारा लेवल मार्किंग है, इसके अकॉर्डिंगली काम होना है हमारे को, सरफेस प्रिपरेशन, ठीक है। ये दिख रहा नेल्स जगह जगह पे आपको दिखेंगे, तो इस तरह के लेवल मार्क कर लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अंदर है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है, तो ये डिफरेंसेस को ख़त्म करना है। फिर वो मटेरियल मिक्स करना है। तो ये हमारा पहला फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। इसके बाद जो है ना सेकेंड स्टेप जो है ग्राइंडिंग। ग्राइंडर को इस तरह से हम जो है सरफेस को पूरा लेवल करेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, हर जगह पे उतना निकला हुआ है क्योंकि लेवल डिफरेंस की वजह से। तो पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सिस्टम है, ठीक है। ये सरफेस प्रिपरेशन होने के बाद क्या करेंगे आप? हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। पहले हम लोग चेक करेंगे, हाँ ऊपर है नीचे, उसको मेंटेन करेंगे जी। मेंटेन करने के बाद उसको पहले पूरा सही, इसके बाद हम लोग उसको पुट्टी करेंगे सही। पुट्टी करने के बाद पुट्टी ये पॉक्सी माजून माजून है, नाम क्या है? नीटो मोटर TC2000 लगाएंगे, ठीक है। ये जो क्रैक्स वगैरह है उसको पूरा नीटो मोटर TC2000 से रिपेयर करेंगे, जी जी, पूरा मेंटेन करेंगे। उसका डबल आर्म, जी जी। वो कैसा आएगा, नीटो मोटर जो ना वो 2 कंपोनेंट में आता है, पार्टनर और बेस। वो दोनों को मिक्स करके आप उससे मिक्स करना, ठीक है। स्लो पैडल मिक्स करके पूरा कम्प्लीटली इवनली अप्लाई करना है इसको, यहाँ से लेकर वहाँ तक। अप्लाई करने के बाद में क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा सूखने देंगे। जैसा सूख जाएगा उसके ऊपर हम ग्राइंडर चलेंगे, हल्का सा पेपर, जैसा कि लपन करके जैसा पेपर मारते ना, उसी तरह से। ओके। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हर एक कोट नीटो मोटर TC2000 मारेंगे, ओके सर। ठीक है। वो मारे बाद में आप जो है नीटो प्राइम आपका जो है ना प्राइमर, वो प्राइमर अप्लाई करेंगे। ओके। अप्लाई करने के बाद में आप उसको 12 घंटे टाइम दें। 12 घंटे के बाद में आप अपना टॉप कोट जो है नीटो फ्लोर FC 150 कर सकते हैं। प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर प्राइमर नहीं लगाएंगे तो इसमें हल्का हल्का जो डस्ट आता है ना, वो डस्ट भी नहीं खत्म होगा और इसकी दरारें भी नहीं खत्म होगी। प्राइमर लगाएंगे तो इसकी वजह से क्या शाइनिंग भी आएगी पेंट के अंदर, और डस्ट भी खत्म हो जाएगा, और जो हल्के हल्के एयर बनते हैं, वो जो खड्डे होते हैं, वो पूरा बंद हो जाएगा। सही, ये एकदम फिनिशिंग काम होगा और कांच की तरह दिखेगा, जी जी, शीशे की तरह नजर आएगा। सही। अब इसके ऊपर जो नीटो फ्लोर FC 150 जो करेंगे आप, उससे पहले करने से पहले ये सूखना चाहिए। कम से कम 10 से 12 घंटा इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है जी, बहुत लाजमी है। बिल्कुल। आप ये नीटो प्राइम ये जो करें आप, इससे पहले क्या क्या करें आप इसको हमने इसको शुरू से बताएं। पहले इसमें ग्लैंडर लगाया अच्छी तरह से। जी। ग्लैंडर लगाने के बाद में एपॉक्सी माजून दिया, एपॉक्सी माजून, जी हाँ। मैक्सिमम TF 10,000, हाँ TF 10,000 से हम लोग क्या किए, ये गड्ढे भर दिए, जी, खड्डे ठीक है। ये खड्डे इस तरह के TF 10,000 से भर दिए। ये देखिए, ये है हमारा TF 10,000। ये जो है 3 कंपोनेंट में आता है जी। एक जो है हमारा, मेरा ऐसा करके बनाओ, एक जो है हमारा शाइन रहता है,
और एक हार्डनर एक बेस, तो ये तीनों को मिक्स कर देते तो वो मोटर के फॉर्म में बनेगा। जी तो वो जब मिक्स कर देंगे आप उसको क्या है आधे घंटे के अंदर यूज़ कर लेना होगा। जी अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो टाइट हो जाएगा। रिएक्शन टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ, तो एक्सपायर हो आधे घंटे जाएगा। में यूज़ करना, ठीक है। जी। ये हमारी जो बिल्डिंग है सब स्टेशन की है, स्विच गियर रूम में है। यहाँ पर जो है इक्विपमेंट्स पैनल्स वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर ये जो सरफेस है हम उसको पेंट करते हैं इस तरह का, ताकि ये जो है ना ड्यूरेबल है, उसके ऊपर चलेंगे फिरेंगे और ये खूबसूरती रहता है, इसलिए ये करते हैं। जी बिल्कुल तो सही। इसमें क्या है डस्ट कंट्रोल होगा आपका और कॉस्ट कंट्रोल होगा, जी तो बहुत सारे बेनिफिट्स है ये करने से। जी तो सर। ये जो कर रहे हैं हम इसका नाम है नीटो फ्लोर FC 150। ओके तो इसमें ये FC 150 जो है टॉप ले रही है फाइनल ग्रे कलर, उसमें 3-4 टाइप के कलर्स होते हैं, वो कलर्स आएंगे इसके ऊपर। तो उससे पहले जो है ना हमको क्या करना है, कंक्रीट जो कंक्रीट रहता है मदर कंक्रीट, उसके ऊपर ग्राइंडर चला के उसको बिल्कुल साफ़ कर देंगे। उसको साफ़ कर देंगे, उसके बाद में जो डस्ट है उसको पूरा धो दो पानी से। तो जब पानी से आप धो देंगे उसके ऊपर कुछ क्रैक्स वगैरह है नहीं है आपको दिखाई देंगे। जी सर। अब उसमें बारीक क्रैक्स रहते हैं, थोड़े से वाइट्स रहते हैं इस तरह के। तो ये क्रैक्स और वाइट्स जो है ना हम किससे फिल करेंगे उसको, नीटो मोटर TC2 ये TC 10,000 ओके उससे फिल करेंगे, ठीक है। ओके वो फिल हो जाने के बाद में उसके बाद आपको बारीक बारीक क्रैक्स दिखते हैं, जी। तो बारीक क्रैक्स क्या है नीटो मोटर TC 2000 से करेंगे, ठीक है। ये सब होने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, नीटो मोटर TC 2000 वो जो है ना हार्ड एंड बेस दो आता है, जी वो दोनों को क्या है पूरा मिक्स करना, पूरा मिक्स करके डाल के उसके ऊपर में आप उसको खींच लेना पूरा। खींच लेना, वो जिस तरह स्क्रैपर से आप- होता है वो। हाँ, लपम से जैसा खींचते ना, हाँ। उस तरह से खींच लेना, ये जैसे हमने खींचा है ओके ये दिख रहा है, ये पूरा ये जी नीटो मोटर TC 2000 है ये पूरा कंप्लीटली खींच देना, ठीक है। ओके सर। और खींच देने के बाद में थोड़ा उसको ड्राई होने के देने का, ठीक है। जी। वो ड्राई होने के बाद में फिर उसके ऊपर हल्का सा पेपर चलाना, सैंड पेपर। ओके फिर वो पेपर मारे बाद में फिर उसको क्लीन करके फिर आप जो है नीटो प्राइम 31, 35 जो भी है जी वो अप्लाई करना। जी सर। जी वो नीटो प्राइम अप्लाई करने के लिए क्या है वो अच्छे से मिक्स करके उसका भी जो है ना आधे घंटे के अंदर हाँ, एक्स्ट्रा डेट होता है उसका भी। उसको डाल के उसको जल्दी लेवल ले लेना पूरा, ओके ठीक है। वो लेवल लेने के बाद में 12 घंटे कम से कम उसको टाइम देना, एटलीस्ट वो सूख जाना। आप ऐसा चलेंगे तो अब जैसा ये हो गया ना, ये ड्राई हो गया, जी। अब हम इसके ऊपर चल सक रहे हैं, ओके लेकिन थोड़े कुछ जगहों पे ज़रा कच्चा है इसलिए हम रुक गए। जी तो ये भी सब सूख जाएगा, हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे नीटो फ्लोर FC 150 लास्ट में। ओके सर। तो ये करने का एडवांटेज ये है कि नीचे से इसमें बबल्स क्रिएट ना होते, पिन पॉकेट होल्स नहीं बनते, डस्ट नहीं रहती, आप डायरेक्टली आप इसको इजीली स्प्रेड कर सकते हैं, जी सर। ठीक है। ओके। और एक चीज़ ख्याल ये रखें, जब भी आप ये काम करेंगे तो इस तरह के जो दरवाजे रहते हैं वो दरवाजे वगैरह पूरे बंद कर देना वो चाहिए। पूरा बंद है सर। ये देखो पूरा बंद कर देना, ठीक है। ओके सर। बंद कर गए आप, क्योंकि वो डस्ट आएगी, फिर वो डस्ट आके कॉन्टामिनेट होके आपका ये फ्लोर का जो है ख़राब हो सकता है। तो उसको पूरा बंद कर देके पहले जो है ना सबसे पहले हम लेवल देना इसको, ओके लेवल सर्वे से लेवल देके मार्क करके कितना किधर आ रहा है उसके हिसाब से पहले सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन इज द बैकबोन ऑफ दिस नीटो फ्लोर FC 150। वो क्या है, वो एक जड़ है समझ लो आप। हाँ जी तो जड़ मजबूत रहेगी तो आगे का सही काम रहेगा। ओके तो सर। इसी तरह पहले सरफेस प्रिपरेशन पे बहुत काम करना होगा, ठीक है। ओके सर। अगर आपका सरफेस अगर अच्छा है तो वेल एंड गुड। अगर बहुत डेटा शीट में दिया हुआ है कि नीटो प्राइम इफ नेसेसरी बोल के, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है नीटो प्राइम उसको कैसा भी लाजमी करें। ओके। वो करने से आपको बॉन्डिंग अच्छी होगी, डस्ट कंटामिनेशन ना होगा और इवन सरफेस आएगा, एक कलर होगा, बिल्कुल उसमें वाइट्स नहीं आएगी। ओके तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी, थैंक यू। ये देख सकते हैं आप नीटो प्राइम करने के बाद का सिचुएशन, ठीक है। फिर इसके बाद में हम करेंगे नीटो फ्लोर FC 150।